ABC right angle at C, median AD y is equal to x plus 3. ABC right angle at C, median AD is equal to AD y is equal to x plus 3. y is equals to x plus 3. Median BE is equal to y is equal to 2x plus 4. Median BE y is equals to 2x plus 4. 2x plus 4. And hypotenuse is 60. हाइपोटेनस is 60. तो एरिया निकालना है ना सर्कल क्वेश्चन. ठीक है. किसी का आया ये वाला? चलो फिर बता देता हूँ. तो एरिया तो क्या हो जाएगा, एक काम करो, let this be a and a, let this be नहीं not a, ये b by 2 हो जाएगा और ये a by 2 हो जाएगा. दिस इज मीडियन से तो a by 2 b by 2. और ऐसे ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस ना. तो इसका स्लोप क्या है 1, इसका स्लोप है 2. द acute angle theta will be what? Theta will be given by m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 यानी 1/3. ठीक है, acute angle आ गया. अब एक काम करो, ध्यान से देखो, let's say if this is theta, this is 180 minus theta ना. Let this be alpha and let this be beta. So अल्फा बीटा और इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 90 360 ना. तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन रहा है 90 प्लस थीटा. ओके, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 90 प्लस थीटा. बट वी कैन राइट tan अल्फा एंड tan बीटा ना. tan अल्फा विल बी व्हाट, tan अल्फा विल बी b अपॉन a by 2, राइट, एंड tan बीटा इज, tan बीटा विल बी व्हाट a अपॉन b by 2. ये समझा? Now since alpha plus beta is 90 plus theta, तो tan of alpha plus beta will be cot theta. ठीक है? Tan of alpha plus beta will be what? Tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. वो क्या बन रहा है? -4 is equals to cot theta will be 3. Minus cot. अच्छा sorry my mistake, -3. Okay, so this becomes 4 times a square plus b square is 9ab ना. ये चलेगा, and a square plus b square is already given to us 60. 60 square क्या बन जाएगा 4 into 3600 by 9 is ab. तो कितना बन रहा है, half ab is the answer. तो जो भी आ रहा है. और कुछ बाकी था कि ये सर, हाँ सर आप बोला था. sir, we know the angle AOB if O is the intersection of the two lines. AOB, yeah. Madam, So OB, yeah, AOB. minus theta. So area of triangle AOB will be 1/3 the area of the whole triangle, right? Area of triangle AOB will be, yeah, medius. Yeah. So half into sides into sin theta of that angle AOB will be But 1/3 the answer. OA and OB, OAOB का length कहाँ पता है तुमको? If you are applying AOB triangle में that thing, मतलब half AB sin theta वाला फॉर्मूला, तो OAOB का साइड लेंथ कहाँ पता है तुमको? Okay, sir. और कुछ बाकी था कि एक तो Hundred और बाकी. वो तो प्रॉपर्टी होती ना, ये जो 3 मीडियंस होती हैं वो 6 सेम एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है ना. सेंट्रोइड वाला जो है 6 लाइंस, 6 जो ट्राइंगल बनेंगे सबका एरिया इक्वली होता है. ठीक है, तो चलो अपन सर्कल से ही कंटिन्यू करते हैं. इसको लिखना है तो लिख लो. तो काम के जो अपने सब टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं अपन. फिर मैं कुछ अच्छी क्वेश्चन भी करा दूंगा थोड़ी से, और तुम्हें कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो पहले ही बोल दूँ कि लाइक ये वाला टॉपिक. अच्छा, इसको लिख लो.
is something which is only depend for circle. Power of a point is not for parabola, ellipse or hyperbola. So फंडा क्या था? If there is a point given p x1 y1, from here you can draw infinite chords to the circle. So for any particular chord, the product of signed distance p and p was here p and p are signed distances. So product of p and p, this is called power of a point. So power of a point n is a sign. तो अपन इसको निकालते कैसे थे? वैसे इससे ये हो गया ना कि अगर p is outside, तो p और pb will be in the same direction. तो signed distances का product will be positive, and अगर p is inside, तो pa और pb will be opposite direction. तो power will be negative. So इसको निकालते कैसे थे? ये एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं. तो पेपर की ये बता ही देता हूँ. So जैसे there is a p point, let's say on the line. So let's use parametric equation of a line because we have seen signed distance in parametric equation of a line. So let there be a point at distance r और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं. ठीक है. So this s point can be written as what? x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. But if this s point is lying on the circle, अपन को क्या करना है? PAP भी निकालना है. तो अगर s लाइन और सर्कल को सॉल्व कर रहा हूँ बट पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में रख दो. तो x1 plus r cos theta होल स्क्वायर, जनरल सर्कल ही एज्यूम कर रहा हूँ तो जनरल सर्कल में खुद कर देता हूँ. y1 plus r sin theta the whole square, x square plus y square plus 2gx plus 2f y plus c equal to 0. As you can see, we are getting a quadratic in R ना. Quadratic का मतलब दो रूट्स हुए. And R represents distance of point S from P. और अपन ने इसको सर्कल पे रखा है. तो there are two such points A and B on the circle ना. तो इसके रूट्स P A P B हुए ना. And by default R is the signed distance. तो अपन को PA into PB निकालना है. तो PA into PB will be nothing but product of the roots. तो constant term upon coefficient of R square. Constant term क्या बनेगा? x1 square, यहाँ से y1 square, यहाँ से 2gx1, यहाँ से 2f y1 और यहाँ से c. तो c को तो s1 बोलते हैं अपन, right? और coefficient of R square is cos square plus sin square which is 1. Product of the roots comes out to be s1 which is independent of theta. तो power of a point is nothing but put the point on the circle, that value is the power. तो इसको अपन power को और कैसे कैसे लिख सकते हैं? Power is given by PAPB which is also PT square ना. When you move the line, since it is independent of theta, अगर लाइन को टेंजेंशियल फॉर्म में लाऊंगा तो P और PB दोनों PT के लेंगे ना. It is also PT square, but ये खाली कब है? जब P बाहर हो तभी अप्लाई करो तो बेटर है. एक इसको S1 भी लिख सकते हैं और एक PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना. अगर इसको सेंटर से निकाल रहा हूँ, let's say C is the center, तो PA इतना डिस्टेंस है, PB इतना डिस्टेंस है. तो PA को PC माइनस R लिख सकता हूँ, PB को PC प्लस R लिख सकता हूँ. PC माइनस R इंटू PC प्लस R इज PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. और पावर ऑफ अ पॉइंट में बस ये याद रखो, कभी कभी गड़बड़ कर सकते हैं. अगर सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल का, व्हेन आई से स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड मतलब जनरल सर्कल, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर सपोज्ड टू बी 1. ओके, तो कभी ऐसा दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4y इक्वल टू 0 और 1,1 का पावर पूछा है. तो डू नॉट जस्ट डायरेक्टली पुट 1,1. पहले क्या करोगे, इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आओगे. दिस इज द प्रॉपर फॉर्म, x स्क्वायर y स्क्वायर. अब 1 रखोगे तो करेक्ट पावर मिलेगा. ठीक है. और क्या क्या काम का रहता है वो सब देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक तो टेंजेंट रहता था, नॉर्मल सीखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी. तो कितने फॉर्म ऑफ टेंजेंट होते थे? एक तो अपना कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या होता था? इफ देयर इज अ पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व, the equation of tangent at that point is p equal to 0. तो for standard circle और general circle both you can write x square की जगह x1 रख दो, y square की जगह y1, xy की जगह xy1 plus x1 y by 2, x की जगह x plus x1 by 2, y की जगह y plus y1 by 2. So by making these changes you get your T form, and this was anyway applicable for all curves, circle, parabola, ellipse, hyperbola. एक क्या होता था दूसरा वाला,
पैरामेट्रिक क्या हो जाता है, कर्व स्पेसिफिक हो जाता है। हर तरह का पैरामेट्रिक इक्वेशन अलग अलग है, दैट्स व्हाई पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी सब अलग अलग आती है। तो जैसे स्टैंडर्ड सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो इसका पैरामेट्रिक यानी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी रिटन एज r cos थीटा r sin थीटा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट एट थीटा। तो टेंजेंट एट थीटा क्या बन जाएगा भाई, दिस इज x1 y1, तो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r। अब इसमें ये रिजल्ट याद रख सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ये तुमने हर टॉपिक में याद रखा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। पैराबोला में भी रखा होगा इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 t2, इलिप्स में भी रखा होगा, इलिप्स में भी अल्फा एंड बीटा आता है। तो ऐसी दो टेंजेंट्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू r, x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू r। इफ यू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस यू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। और सजेशन है कि ये याद ही रख लो, क्योंकि सिमिलर इंटरसेक्शन पॉइंट किसमें आता है, इलिप्स में। इलिप्स में खाली क्या डिफरेंस आ जाता है, इलिप्स में खाली r की जगह क्या बन जाता है यहाँ पे, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, r में यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। तो एंड कभी कभी जल्दी अगर कैलकुलेशन करना हो, लूकस वूकस के केस में, एलिमिनेशन के केस में यूज आ जाता है, तो रिमेंबर दिस वन। हाँ सर, तो कोई भी सर्कल का कोई भी फॉर्मूला होगा, जनरल फार्मूला होगा, तो उसके अंदर a और b डालेंगे, r के बदले a और b डालेंगे x और y का, तो एलिप्स के सब फार्मूला मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सब केसेस में? हाँ मिलेंगे सब। जैसे सर्कल ये है, मान लो x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल टू x1 y1 ले लेता हूँ, x1 y1, ठीक है। सर्कल ये है तो अपन यू कैन जस्टिफाई दैट बाय, तुम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हो, हाँ, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन टाइप हो जाएगा। हाँ वो नहीं, वैसा नहीं, मतलब वो तो x प्लस x1 कर देंगे ना। हाँ मतलब हाँ, x माइनस x1 विल बी दिस। ऐसा नहीं बोल, मतलब अगर हम लोग कोई जनरल सर्कल के लिए सच दैट x1 एंड y1 आर 0, और उधर हम लोग ने प्रूव किया था कि एलिप्स के अंदर की जो हम लोग सब कंप्रेस करके एलिप्स के लिए सब सर्कल के सब फॉर्मूलाज, मतलब कि जो हमने जो सब फॉर्मूलाज नहीं, कोऑर्डिनेट, तुम इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस लाओगे। ऐसा नहीं, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स मिले उसके अंदर a और b से कर सकते हैं खाली y कोऑर्डिनेट है। Sir, Thane branch was disconnected. ओके ओके। अरे खाली जैसे ऐसा है कि मतलब a और b से कर सकते हैं ना, मतलब खाली R है, y कोऑर्डिनेट उसको आप निकाल सकते हो, वही वाली बात है। बिकॉज़ ऐसे करके हाँ वही इलिप्स के रिजल्ट सर्कल के रिजल्ट से आ सकते हैं, बट हर उसमें नहीं होगा। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जैसी चीज है तो उसमें लगा सकते हो अपने बात। इसका क्या हो जाएगा? Sir, can you please repeat that intersection of tangents point? मैं जस्ट ये बता रहा था कि लेट्स से देयर आर टू टेंजेंट्स, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। तो दो टेंजेंट्स हैं यानी दो इक्वेशन है, वी कैन सॉल्व टू इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है ऐसा, मतलब नो नीड टू गेट इनटू दैट कि सॉल्व कैसे करा, सिंपल cos a plus cos b sin c plus sin d लग जाता है, तो इस फॉर्म में आ जाता है। एंड सजेशन इसकी इसको याद रखो, क्योंकि इलिप्स में भी ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। और ये वाले रिजल्ट तुम लोग पैराबोला में भी याद रखे होंगे, a(t1 t2 a(t1 plus t2), इलिप्स में यहाँ पे a और b आ जाता है। हाइपरबोला में इतना यूज नहीं आता, बट थोड़ा सा सिमिलर टाइप का रिजल्ट रहता है हाइपरबोला का भी। अगर जनरल सर्कल है तो तुम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से सब कुछ जस्टिफाई कर सकते हो ना। जैसे टेंजेंट क्या बन जाएगी, x माइनस x1 cos थीटा y माइनस y1 sin थीटा इज इक्वल्स टू r। क्योंकि अगर इस सर्कल के लिए ये है तो अपन ने जो भी शिफ्ट किया है तो यहाँ पे जो चेंजेस आए वहीं पे ये चेंजेस आएंगे, लेकिन जस्टिफाई दैट, तो ऐसे यूज कर सकते हो। और तीसरा वाला फॉर्म क्या होता है, तीसरा फॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। बट स्लोप फॉर्म अपन यूजुअली कब यूज करते हैं, जब कुछ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टाइप दिया हो, तब ये एलिमिनेशन के काम में ज़्यादा यूज आता है। कि जैसे एक मतलब दो टेंजेंट्स हैं, सेम सर्कल अलग अलग सर्कल कुछ भी हो सकता है, बट जब भी 90 डिग्री बने ना तो अपन स्लोप फॉर्म प्रेफर करते हैं रादर देन पैरामेट्रिक और कार्टेशियन। तो अपन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे वो तो कैसा है, इसमें से कुछ लिखना है कि दिस इज ओके। ये स्टैंडर्ड वाले के लिए, तो अब तुम सोच के बताओ कि इस वाले के लिए क्या बनेगा। बस वही शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो जनरल के लिए बन जाएगा, खाली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से यू कैन जस्टिफाई। कुछ लिखना है इसमें से?
और ये सब छोटे मोटे कुछ फॉर्मूले तुम लोगों ने सीखे होंगे, तो ऐसे ही याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज डिराइव कर सकते हो बहुत जल्दी। जैसे देयर इज अ पॉइंट x1 y1, सो ये एंगल क्या आ जाएगा, इसको अपन इजीली निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया भी क्या आ जाएगा, एवरीथिंग वी कैन फाइंड। दिस इज रूट s1 ना, क्योंकि pt स्क्वायर इज s1, तो pt is root s1, तो length of tangent from external point is given by root s1, and also this is r। तो अगर ये एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो r बाय रूट s1 इज tan थीटा बाई 2। ऐसे लिखते हैं ना, 2 tan इनवर्स r बाय रूट s1, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन पेयर। तो px1 y1 ये जनरल फॉर्मूला है, कोई से भी सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि s1 और r दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद ये ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो ना, ये एंगल बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents and the corresponding chord of contact। तो वो क्या आता है एरिया, this is root s1, this is root s1 and this is theta, तो एरिया तो निकाल सकते हैं ना, हाफ this sin theta, और tan theta by 2 भी पता है तो sin theta, तो वो ऐसा कुछ आता था, r s1 की पावर 3/2 upon r square plus s1। and similar formula is also there for ellipse, for ellipse देख लेंगे। ऐसा तो सजेस्ट की याद रख सकते हो। चाहो तो तुम लोग ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ भी निकाल सकते हो ज्योमेट्री से, बट ठीक है, मतलब वो सब तुम लोग डिराइव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ क्या है, एरिया हो गया, थीटा हो गया, रूट s1 हो गया, ठीक है, ये इतना याद रख लो तो काफ़ी है। और ये PA लेट द सेंटर BO, तो PAOB का एरिया भी क्या हो जाएगा, PAOB जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका एरिया क्या बन जाएगा, r s1 ना, ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ r रूट s1 क्योंकि 90 है, और ये ट्राइंगल का भी सेम है, तो r s1 r रूट s1 ये हो जाएगा। तो इतना याद रखो तो काफ़ी है। उसके बाद ये सब जनरल चीज़ें तो तुम्हें याद ही होंगी। एक होता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन इज गिवन बाय t इक्वल टू 0। एक होता है इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड हुज मिडल पॉइंट इज गिवन, तो वो क्या बनता था, t इक्वल टू s1, एक ऐसा कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट लेट्स से x1 y1 है, तो t निकालना आता है, s1 तो वैल्यू है, तो t इक्वल टू s1 विल गिव द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड। और एक होता था पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, बट दिस गिव्स यू डायरेक्टली लाइन पेयर, बट इफ यू वांट इंडिविजुअल लाइंस तो फिर स्लोप फॉर्म का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1, तो अपन जैसे स्टैंडर्ड सर्कल के लिए अगर है तो जनरल के लिए भी कर ही सकते हो, तो अपन एक स्लोप फॉर्म, खाली इनके स्लोप चाहिए ना अपन को इक्वेशन निकालने के लिए, तो वी कैन यूज स्लोप फॉर्म कि लेट द टेंजेंट बी दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल इफ इट पासेस थ्रू x1 y1, तो पुट x1 y1, so you are going to get a quadratic in M ना, और quadratic का क्या मीनिंग है, there are two such lines which can pass through point x1 y1, तो of course इसके roots are the roots of these two tangents, तो ऐसे भी कर सकते हो, काफ़ी यूज हो जाता है ये सब। उसके बाद देखो मेनली ये सब चीज़ें रहती है, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर वगैरह देख लेते हैं। तो रेडिकल एक्सिस का क्या पढ़ना रहता है, रेडिकल एक्सिस का दो डेफिनेशन होता है, दोनों वैलिड है, दोनों एप्लीकेबल है। एक रेडिकल एक्सिस जैसे पावर ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड फॉर अ सिंगल सर्कल, रेडिकल एक्सिस इज डिफाइंड फॉर टू सर्कल्स, तो एक सर्कल है w1 इक्वल टू 0, एक सर्कल है w2 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो p पॉइंट है x1 y1, इसका पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर इक्वल है। तो अगर अपन पावर इक्वेट करेंगे तो s1 इक्वल टू s2 रखोगे ना, ऐसा टाइप, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, s1 माइनस s2 0, मतलब सर्कल की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो बस, तो दिस इज गोइंग टू गेट यू द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस निकालना है तो खाली सर्कल की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी लीनियर इक्वेशन बचेगी दैट इज द रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस निकालना है तो खाली ये कर दो। और दूसरा डेफिनेशन क्या था, वो डेफिनेशन नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी आती है एक तरीके से, बाद में आती है।
वो ऐसा होता है कि लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू 2 गिवन सर्कल्स। वो हाँ वो सही है, बट वो डेफिनेशन एक ये होती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि पावर ऑफ अ पॉइंट सेम है तो रूट S1 रूट S2 भी सेम होंगे, तो मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए। यानी रेडिकल एक्सिस पर अगर पॉइंट लोगे तो वहां से टेंजेंट लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल। और रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती थी, प्रॉपर्टीज में लिखा नहीं रहा, बस ऐसे रिवाइज करा देता हूँ। रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या होता था, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। अगर रेडाई इक्वल है, रेडाई अगर इक्वल है सर्कल्स के, तो इट विल बिकम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है। उसके बाद ऐसा भी होता है, देखो दो सर्कल्स हैं, पोजीशन भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर ऐसे दो सर्कल्स हैं, दोज हु डू नॉट टच और कट ईच अदर एंड दे आर एक्सटर्नल टू ईच अदर, तो रेडिकल एक्सिस बीच में आएगा, राइट। अगर मान लो दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, तो रेडिकल एक्सिस क्या बन जाता था, कॉमन कॉर्ड ना। क्यों? क्योंकि जैसे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, ए इज अ पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल 1, तो उसका पावर 0 हो गया। A is also a point which is on the circle 2, तो A का पावर with respect to circle 2 भी 0 हो गया, तो इक्वल पावर हो गया ना। तो A is a point on the radical axis, similarly B का भी इक्वल पावर से, तो B is a point on the radical axis, and since radical axis is a line, it has to be the line AB, simple enough। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी निकालना है तो कैसे निकालोगे, S1 minus S2 equal to 0। अगर टच कर रहा है तो टच वाले केस में क्या होता था, if radical axis if two circles are touching, तो दो टाइप के टच हो सकते हैं, इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच। तो इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच में क्या होगा, देखो ये द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि कॉमन टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है, बट कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाई? क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि इस पॉइंट का पावर 0, दोनों के रिस्पेक्ट में 0 तो इक्वल है, एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, एंड सेम स्टेटमेंट हियर ऑल्सो। तो अगर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो भी S1 minus S2 equal to 0 मिल रहा है। और अगर मान लो सर्कल एक दूसरे के अंदर हो जाते हैं ऐसा, then radical axis has to be away, मतलब ऐसा है कि सर्कल अगर ऐसे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही टेंजेंट होगा। द मिनट दिस सर्कल मूव्स इनसाइड, दिस रेडिकल एक्सिस विल मूव अवे, एंड रेडिकल एक्सिस किसका एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। जैसे जैसे ये सर्कल सेंटर पास आते जाएंगे, द रेडिकल एक्सिस विल स्टार्ट टू मूव अवे, एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस होगा ही नहीं, क्योंकि द मिनट यू पुट S1 minus S2 0, विल ओनली गेट कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस 0 ना, क्योंकि पूरी इक्वेशन सेम होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की एक्सेप्ट द कांस्टेंट टर्म। तो C1 equal to C2 टाइप आ जाएगा, विच इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन टाइप आ जाएगा। इसमें से कुछ लिखना है कि ठीक है? ठीक है, 2 मिनट आगे हाँ लिखना है तो लिख लो। हाँ 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 वो थोड़ी देर बाद बताऊँ।
सर आपने जो इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स की जो फॉर्मूला लिखा है तो उसके अंदर साइन बाय कॉस था कि कॉस बाय कॉस था या साइन बाय कॉस था तो सर पर अगर आप लोग टैंजेंट्स बनाते तो दो ही सेम पॉइंट्स ले लेते तो दो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेना उसके क्या बोल रहे हैं मतलब जो टैंजेंट है अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो उसको सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूला थोड़ी बनेगा। लेट्स से दोनों को अल्फा ले ले, मैंने ये क्या अज्यूम करा जब इसमें मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा ना प्रॉपर, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करा इसमें बीटा मल्टीप्लाई, बट ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा ना क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा ना तो कॉस आपने कैसे फॉर्मूला के अंदर कॉस है तो वो तो वैल्यू होती है हाँ साइन नहीं होता। अच्छा तो वो तो वही आ जाएगा अल्फा अल्फा साइन अल्फा ही आ जाएगा। हाँ वो कॉस डालना है बट ये तो कैसी बात कर रहा है, मतलब लाइक दो कोइंसिडेंट लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो फिर ये फॉर्मूला क्यों वैलिड होगा यार, मतलब लाइक ऐसी बात क्यों कर रहा है, इस फॉर्मूला में मत लगा कोइंसिडेंट लाइन से। चलो अगर लिखा हो तो चलो ठीक है बता ही देता हूँ। ये हो गया नेक्स्ट क्या हो जाता है इसमें सिंपल रेडिकल एक्सिस, और ये भी याद रख ही सकते हो कि रेडिकल एक्सिस जो दो लाइंस हैं रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट ना, कॉमन टेंजेंट कोई सी भी हो ट्रांसवर्स हो चाहे डायरेक्ट हो रेडिकल एक्सिस ये सारे पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से दिस इज पॉइंट ए तो ए इज अ पॉइंट अगर रेडिकल एक्सिस पर है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ से टेंजेंट लेंथ इक्वल होनी चाहिए ना, तो बाइसेक्ट हो रही है सिंपल। ठीक है ये याद रख सकते हो, इसका भी कभी यूज आ जाता है। एक क्या होता है रेडिकल सेंटर, अब रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर इज फॉर 3 सर्कल्स। अगर 3 सर्कल दे रखे हैं तो 3 सर्कल का एक रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अनटिल दे आर कोलिनियर, मतलब सेंटर्स आर कोलिनियर। तो रेडिकल सेंटर का क्या फंडा होता है, रेडिकल सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 रेडिकल एक्सिस। अगर 3 सर्कल है तो पेयर वाइज 3 रेडिकल एक्सिस बनेगी, तो दिस पॉइंट इज द रेडिकल सेंटर जहाँ पे भी तीनों, और ये कौन बोलता है कि ये कॉन्करेंट है, वी कैन वेरी इजीली प्रूव कि यार तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होंगी। लेट्स से R इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस 2 रेडिकल एक्सिस, 2 रेडिकल एक्सिस तो कहीं ना कहीं विल इंटरसेक्ट। नाउ दिस पॉइंट इज ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीस 2 सर्कल, so this point must have equal powers with respect to these 2 circles, तो इसके रिस्पेक्ट में x है तो इसके रिस्पेक्ट में भी x होगा। now R is a point on this radical axis, तो R must have equal powers with respect to these 2 circles, तो इसके रिस्पेक्ट में x है तो इसके रिस्पेक्ट में भी x हो गया। now R is a point which has equal powers with respect to these 2 circles, then R must be lying on the radical axis, तो तीनों radical axis will be concurrent। तो रेडिकल सेंटर निकालना तो क्या कर लो, 2 रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है अब अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे एक ट्राइंगल एबीसी है तो ये वाला याद रख सकते हो, यूज आ जाता है कभी कभी। तो इफ यू टेक ए बी, साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल्स बनाते हैं, साइड्स को डायमीटर लेके अगर सर्कल्स बनाते हैं तो रेडिकल सेंटर इज सेम एज, रेडिकल सेंटर इज सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ना। जैसे मान लो ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, फिर ए सी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया और बी सी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, तो ये 3 सर्कल्स हैं तो इनका रेडिकल सेंटर मस्ट एग्जिस्ट। तो वो रेडिकल सेंटर क्या आता है, इट इज सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। कैसे? सिंपल सी बात है यार, देखो ये जो सर्कल है ए बी ऑन डायमीटर है ना, तो ये ऑल्टीट्यूड के फीट ऑफ द ऑल्टीट्यूड से पास होगा ना, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल मस्ट बी 90, तो यहाँ से पास होगा ही होगा। सेम स्टोरी फॉर ACS डायमीटर, तो कहना से फॉर दीज 2 सर्कल्स ऑल्टीट्यूड इज द रेडिकल एक्सिस, फॉर द नेक्स्ट 2 सर्कल्स मतलब द 3 रेडिकल एक्सिस आर द 3 ऑल्टीट्यूड्स, सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड्स इज द रेडिकल सेंटर, तो विच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर मान लो तीनों सर्कल्स टचिंग है, अगर इस केस में if all 3 circles are touching तो क्या हो जाएगा, अगर all 3 circles are touching ऐसे तो क्या बनेगा बताओ,
ये वाला जो ट्राइंगल है इसका इन सेंटर ना, देखो कैसे सिंपल सी बात है, इफ दे आर टचिंग ईच अदर तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइंस क्या हो जाएंगी, रेडिकल एक्सिस ना, तो कॉमन टेंजेंट है एंड इसका पावर इक्वल है, मतलब ये तीनों लेंथ इक्वल है ना, तो ये तीनों लेंथ इक्वल है, यानी देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, तो दैट्स द पॉइंट इज इन सेंटर। अगर तीनों के खाली रेडाई इक्वल है तो क्या कहलाएगा, इफ ओनली रेडाई आर इक्वल देन व्हाट, सर्कम सेंटर हो जाएगा ना, रेडियस इक्वल है बस खाली ये बोल रहा हूँ तो सर्कम सेंटर हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल में रेडियस इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो these three radical axes are the perpendicular bisectors of these three sides, so this has to be the circumcenter ना, ये समझे। और हाँ हाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए रहेगा, ए रहेगा, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड रहेगा ना, क्योंकि अगर ए बी डायमीटर है तो ये वाला सर्कल एज डायमीटर अगर बनाऊंगा तो ये बी सी को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना, बट सिंस दिस इज डायमीटर तो ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 होना चाहिए ना, तो इस एंगल को 90 होना पड़ेगा कि नहीं, तो वो फीट ऑफ द ऑल्टीट्यूड हो गया ना, एंड द सेम स्टेटमेंट फॉर दिस सर्कल, तो बस वो ऑल्टीट्यूड ही द रेडिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। फिर इसमें और क्या क्या यूज आता था ये देखो, अच्छा ये भी चलिए थोड़ी देर बाद बताता हूँ, इसमें कुछ लिखना है कि ठीक है ये सब लिखना है तो कुछ लिख लो। ये टच वाला केस था, अगर टच कर रहे हैं और अगर सेम रेडाई है तो ऐसा हो जाएगा, Sir, to prove that the radical axis is perpendicular to the line joining the center of the circles, we have to use coordinate, the x and y coordinate. हाँ बोलो बोलो। x y मतलब कोऑर्डिनेट से सिस्टम से ही कर सकते हैं ना कि मतलब कोई ये प्रॉपर्टी से M1 भी कर सकते हैं। M1 M2 -1 क्योंकि Okay, उसमें तो sir. डेफिनेशन ही यूज आ रही है ना, एंड डेफिनेशन तो कोऑर्डिनेट की है, तो सबट्रैक्ट करोगे इक्वेशन तो उस लाइन का जो इक्वेशन आएगा एंड लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स का जो स्लोप आएगा M1 M2 -1 आ जाता है, तो वैसे ही देख लेते हैं हम। Okay, sir.
एक होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स इज वेरी इजी टू फाइंड। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के केस में, सर्कल के केस में कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल मान लो दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो अपन ने कैलकुलस में सीखा वही वाला मेथड। बट सर्कल की केस पर वी डोंट एक्चुअली नीड दिस, ना ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है और ना ही स्लोप लॉग डिफरेंशिएशन कुछ की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। इसमें टेंजेंट्स मान लो ये रही, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा। इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 90 ये 90, ओके। ये दोनों रेडाई हो गए R1 R2। दिस इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड लेट दिस ट्राइंगल, ये जो नया ट्राइंगल बना है इसका इंटरनल एंगल ये वाला बोल देते हैं अल्फा। तो यू कैन सी ना कि थीटा प्लस 180 प्लस अल्फा 360 बन रहा है, थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा प्लस 90 360 बन रहा है। तो अल्फा प्लस थीटा इज 180। तो इफ यू नो अल्फा यू नो थीटा, एंड अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो कॉस ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो कॉस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, 180 माइनस अल्फा ना, द माइनस ऑफ दिस, तो उसको खाली ये लिख सकते हो, d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, सिंपल। और अगर तुम्हें अक्यूट एंगल पूछा है तो अक्यूट एंगल के लिए क्या लोगे, समझ गए। और इसी से कौन सा वाला केस डिराइव हो जाता है, ऑर्थोगोनल वाला। टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो थीटा को चुपचाप क्या रख दो 90। तो व्हेन यू पुट थीटा 90, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या आ जाती है, व्हेन यू पुट थीटा 90 ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन आ जाती है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, रेडाई एट द इंटरसेक्शन पॉइंट आर परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट ऑर्थोगोनैलिटी मींस। 90 डिग्री हो गया, रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो d स्क्वायर इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, ये सेम कंडीशन को अपन, ये तो ज्योमेट्रिक कंडीशन हो गई, सेम ही कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं अपन, 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2 इज c1 प्लस c2। ये भी if this condition holds true then also you can call them orthogonal। orthogonal है तो ये true है, converse भी true है। and also इसको ऐसे भी लिख सकते हो, let's say इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर है O2। now let's say ये सर्कल W1 है, ये सर्कल W2 है। ऐसे लिख सकते हो अगर ऑर्थोगोनल है तो पावर ऑफ O1 विद रिस्पेक्ट टू W2, इस वाले सर्कल के सेंटर का पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ये जो ये रेडियस है ये टेंजेंट है ना, और पावर टेंजेंट स्क्वायर होती है ना, तो r1 स्क्वायर बोल सकता हूँ, मतलब O1 का पावर विद रिस्पेक्ट टू दी ऑर्थोगोनल सर्कल इस खुद ही के रेडियस का स्क्वायर, इट इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सर्कल ना, खुद ही के रेडियस का स्क्वायर। एंड पावर ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू W1 वो क्या बन जाएगा, r2 स्क्वायर। दिस वे यू कैन यूज दिस। अब इसको काफी ट्रिकी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यूज करने वाली बात है, जैसे मैथमेटिकली बोल रहा हूँ मैं, ज्योमेट्रिकली ऑफ कोर्स करेक्ट नहीं है। जैसे एक पॉइंट है मान लो, इफ दिस पॉइंट इज ऑन दिस सर्कल, तो हम ये बोल सकते हैं ना मैथमेटिकली यूज करने के लिए कि दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। यू कैन जस्टिफाई ज्योमेट्रिकली, कोई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये पॉइंट है। बट क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो अपन फॉर्मूले यूज करेंगे ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कल और ये बड़ा सर्कल ऑर्थोगोनल है। हाँ है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो d स्क्वायर क्या बन रहा है, r स्क्वायर, RHS क्या बन रहा है, r स्क्वायर प्लस 0। तो दिस फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू, तो वी कैन कॉल देम ऑर्थोगोनल। अब ये मत बोलना कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो ऐसे बोलने की बात है। मैथमेटिकली ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ऐसी बात है, ठीक है। उसके बाद चलो एक ऐसे ही काम आ जाता है इस चीज का, जैसे मान लो एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विच इज ऑर्थोगोनल टू दीज टू सर्कल्स।
एक ऐसा सर्कल जो ऑर्थोगोनल टू दीज टू सर्कल्स, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट सच ए सर्कल। तो वैसे ध्यान से देखो, ये वाला सर्कल जो भी है W, लेट दिस बी W1, लेट दिस बी W2, तो कंडीशन इज W इज ऑर्थोगोनल टू W1 एज वेल एज W2। तो अब ऐसे बोल सकते हैं ये जो भी है इसका सेंटर O मान लो, नाउ O और इसका रेडियस स्मॉल r मान लो। O का पावर विद रिस्पेक्ट टू W1 क्या होगा, खुद ही के रेडियस का स्क्वायर ना, तो स्मॉल r स्क्वायर। O का पावर विद रिस्पेक्ट टू W2 भी क्या होगा, स्मॉल r स्क्वायर। तो कैन आई से O इज a point which has equal powers with respect to these two circles. So O must lie on such a circle, इसका center must lie on radical axis of W1 and W2. In fact, let's see the converse also. ये construction ऐसे ही समझा देता हूँ। Converse मतलब ऐसे कितने circle होंगे, मतलब ऐसे कितने point हो सकते हैं, कितने circle हो सकते हैं, तो उसके converse से अपन justify करते हैं। Let's see, ये दो सर्कल हैं, तो उनका एक रेडिकल एक्सिस बना लूं, ठीक है। नाउ यू टेक हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन टेक ऑन द रेडिकल एक्सिस, इनफाइनाइट पॉइंट्स। यू टेक एनी सम रैंडम पॉइंट। नाउ सिंस दिस पॉइंट इज ऑन द रेडिकल एक्सिस, यहाँ से टेंजेंट लेंथ इक्वल होगी कि नहीं, चलेगा। एंड सिंस टेंजेंट लेंथ्स आर इक्वल OA OB, तो टेकिंग O as center and tangent length as radius, we can construct a circle ना। तो ये जो सर्कल बनाऊंगा, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल। क्यों, क्योंकि ये इसका रेडियस है, इस सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा तो 90 हो जाएगा ना, तो ऑर्थोगोनल हो गया ना। और ये इसको टेंजेंट है, तो एक तरीके से ये दोनों रेडियाई परपेंडिकुलर है, या फिर टेंजेंट एट दीस टू, टेंजेंट एट A, तो बोथ द सर्कल्स आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे कितने पॉइंट्स ले सकता था, इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स व्हिच कैन इंटरसेक्ट two given circles orthogonally, and all those centers are lying on radical axis. Now same scenario can also be realized in three circles. मतलब मान लो तीन सर्कल। सर मतलब ऐसा ही है ना कि रेडिकल एक्सिस के लिए कोई भी एक पॉइंट का एक ही सर्कल बनेगा जो ऑर्थोगोनल हो। हाँ, एक पॉइंट पे तो एक ही सर्कल बनेगा, बट है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ना, तो देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइट सर्कल्स व्हिच कैन इंटरसेक्ट दीस टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। अब एक लूंगा तो उसका तो एक ही सर्कल है ना, ऑफ कोर्स, सेंटर फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है। चलो, ये जो तीन सर्कल्स हैं, अगर तीन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कोई कट कर रहा है तो ऐसा एक ही सर्कल होगा। वो अपन ऐसे कॉन्वर्स में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, बट ये समझो, ये जो O पॉइंट है, नाउ दिस इज इंटरसेक्टिंग दीज थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, O का पावर विद रिस्पेक्ट टू W1 क्या होगा, R स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में भी R स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में भी R स्क्वायर। So if a point which has equal powers with respect to three given circles, then that point is called radical center. और converse में भी तुम लोग कर सकते हो ना, ये बात समझ रही, सेम टू सेम चीज यहीं पे कर सकते हो, बट वो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब वो रेडिकल सेंटर ही आने वाला है ना, तीन रेडिकल एक्सिस पर लाइन कर रहा तो रेडिकल सेंटर है। तो इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे समझ आ गया कि वैसे O फिक्स हो गया ना, इसमें O फिक्स हो गया ना, क्योंकि इन तीनों का पावर, सॉरी, O का पावर विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी सर्कल्स सेम है, तो O हैज टू बी रेडिकल सेंटर। तो O रेडिकल सेंटर है और रेडिकल सेंटर एक ही होता है, तो O फिक्स हो गया और सर्कल भी फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये O है, तो O से टेंजेंट लेंथ व्हिच विल बी द रेडियस राइट नाउ फॉर दिस, जैसे इसके लिए रेडियस था ना टेंजेंट लेंथ, तो इसका रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, द टेंजेंट लेंथ which is fixed ना, O फिक्स है तो टेंजेंट लेंथ फ्रॉम O टू ऑल थ्री सर्कल सेम है, तो वो निकाल सकते हो ना। O मिल गया अपन को रेडिकल सेंटर, और रेडियस कैसे निकालोगे, √S1। किसी भी एक सर्कल के लिए ये O पॉइंट डाल दो, O सॉल्व करना हमको आता है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू रेडिकल एक्सिस, O पॉइंट मिल गया, तो किसी भी एक इजी वाले सर्कल में √S1 कर दो तो इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस मिल गया, समझे। तो इस वाले केस को भी याद रख सकते हो। इसमें कुछ लिखना है क्या? हाँ सर, ठीक है, लिख लो। सर, हाँ, वो सर्कल सबके सेंटर से पास कर सकता है क्या? वो सर्कल सबके सेंटर से पास नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल है ना, तो इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर,
तो सेंटर से पास नहीं करेंगे ना नेसेसरीली। अगर जैसे ये वाला केस है, इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो सेंटर से नेसेसरीली पास नहीं करेंगे दूसरे के, अदरवाइज एंगल 90 नहीं बनेगा। दोनों आई एम टेलिंग द थर्ड सर, जो 3 सर्कल बनाए हैं फिर उसके ऊपर एक तीसरा चौथा सर्कल बनाया, वो सबके सेंटर से जाएगा क्या? बट वो फिर ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अच्छा ओके सर। वो फिर ऑर्थोगोनल नहीं होगा। सेंटर तो बना सकते हो विच पासेस थ्रू ऑल 3 सेंटर्स, सर्कल तो बना ही सकते हो। इसका असाइनमेंट, इसका टेस्ट होगा क्या? असाइनमेंट होगा, इसका टेस्ट होगा। अरे बट असाइनमेंट तो पिछले साल वाले ले लो, मुझे पता है था। पिछले साल भी क्रैश कोर्स बने थे, सबके लिए दो ना, चेक करना अच्छे। सर असाइनमेंट आप सेंड कर रहे हो क्या? नहीं, असाइनमेंट प्रोबेबली इसका असाइनमेंट नहीं है, इसका टेस्ट है। एंड असाइनमेंट वाइज सजेस्ट, पिछले साल भी क्रैश कोर्स के काफी अच्छे असाइनमेंट बने थे, तो तुम अपने सेंटर पे जो भी सेंटर मैनेजर है उससे बोलो वो तुम्हें पिछले साल वाले क्रैश कोर्स वाले असाइनमेंट दे देंगे। ओके फाइन ओके। चल, और इसके बाद एक वो भी सुना होगा, बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस। तो बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस व्हिच इज सेम एज लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड, दोनों सिनेरियो सेम है। तो बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हुआ? एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट ये दोनों पॉइंट्स, मतलब ये दोनों पोर्शन इक्वल है। बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस, नाउ दिस इज वेरी इजी। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन क्या है? डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड कैन बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो इसको कैसे यूज कर सकते हो? इसको ऐसे यूज कर सकते हो, इसमें भी ज्योमेट्रिकल रिलेशन निकाल सकते हो। ये बड़े सर्कल का रेडियस है, ये कायदे से डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हुआ, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। So you can write this. In this case, r square will be small r square plus d square. Or you can also say that radical axis passes through center of
स्मॉलर सर्कल। तो मतलब रेडिकल एक्सिस निकाल के स्मॉलर सर्कल का सेंटर पुट कर दो, तो दैट विल लीव यू कंडीशन, दैट कंडीशन यू कैन यूज। तो बाइसेक्टिंग द सर्कमफरेंस मतलब ये दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। एक ये वाला सिनेरियो भी आता है, ये वाला जो अपन ने डिस्कस करा था, याद रख सकते हो तो रखो, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट और एनीथिंग, कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का इन सर्कल और एक्स सर्कल या फिर इन सेंटर और एक्स सेंटर, ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना ए और बी, यहाँ से सेंटर से पास होने वाली लाइन जो बनाओगे, कैसे इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। ये वाला पॉइंट इन सेंटर क्यों होगा, एक काम करते हैं यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बच्चे को समझ आता है कि ये दोनों एंगल तो पक्का इक्वल है, ये सेंटर वाली लाइन है ना, डायमीटर वाली लाइन है, तो ये दोनों एंगल तो पक्का इक्वल होंगे, एंड टेंजेंट लेंथ भी इक्वल होती है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, तो ये टोटल एंगल भी इक्वल होंगे, समझ गए। टोटल एंगल भी इक्वल है और ये आधे आधे एंगल भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए ना, समझा। ये थीटा थीटा है और ये भी बीटा बीटा होगा, तभी दोनों थीटा प्लस बीटा होंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, अरे हाँ सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है ना, सॉरी मैं कुछ सॉरी बोल रहा हूँ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है ना, तो ये भी थीटा हो गया, एंड ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो ये भी थीटा हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, इन सेंटर। सेम वे यू कैन आल्सो प्रूव दैट इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर विल मीट एट बी। तो ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी आर इन सेंटर एंड एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB, नहीं सॉरी PCD बोल देता हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। और कौन सा सिनेरियो रहता था देखो, वैसे पोल पोलर बताऊं कि याद है, वैसे पोल पोलर सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं पूछता पोल पोलर, और पोल पोलर हाँ वो तो वही है 1990 ओपी का। अब सब चीज़ें याद मत रखो यार, मतलब वो मज़ा नहीं आता है। इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्योंकि ये 90 वाला बन जाएगा, ये 90 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद OPS डायमीटर, करेक्ट। पर ठीक है, मतलब ज़्यादा मत बोलो। एक ये और बता देता हूँ, फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। फैमिली ऑफ सर्कल्स तो काम आता है ये डेफिनेटली, थोड़ा सा कोएक्सियल सर्कल भी थोड़ा सा आइडिया हो तो ठीक है। तो फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल। तो कोएक्सियल सर्कल का आइडिया क्या रहता है, ऑल दो सर्कल्स जिनका रेडिकल एक्सिस सेम हो। तो जैसे मान लो एक ये सर्कल है और ये सर्कल है, रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। बट यू कैन ऑल्सो हैव सर्कल्स हियर सच दैट इन दोनों का रेडिकल एक्सिस क्या हो जाए, सेम लाइन, सच दैट इन दोनों का रेडिकल एक्सिस भी क्या हो जाए, सेम लाइन, ऐसा। तो ऑल सच सर्कल जिनका रेडिकल एक्सिस सेम हो, दे आर कॉल्ड कोएक्सियल सर्कल्स, कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। अब ऐसे 3 टाइप के कोएक्सियल सर्कल्स होते हैं, कौन से 3 टाइप की फैमिली होती है, कोएक्सियल फैमिली बोलते हैं इनको। एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप। तो नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप क्या हो जाएगा, ऐसा, no two circles in this family intersect or cut or touch each other. ऐसे टाइप के सर्कल्स, जैसे ये दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस यही है। यू टेक दीज 2 सर्कल्स, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस भी यही है, एंड नो 2 सर्कल्स इन दिस फैमिली इंटरसेक्ट और कट ईच अदर। कोएक्सियल फैमिली में क्या फंडा रहता है, all the circles का centers are, all centers are collinear ना, क्योंकि line joining the centers perpendicular to radical axis होती है, और सबके सब क्या बना रहे, सेम radical axis है, तो all the centers are collinear। एक किस टाइप का होता है, टचिंग टाइप। टचिंग टाइप मतलब क्या हुआ, all the circles actually touch each other at a single point,
ऐसे टाइप के सर्कल्स। और एक जो अपन लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करा है सर्कल्स में, दैट इज इंटरसेक्टिंग टाइप। इंटरसेक्टिंग टाइप कौन सा बना जाता है? ऑल सर्कल्स इन दिस फैमिली इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऐसे वाले सर्कल्स। इन सब में भी रेडिकल एक्सिस यही वाली लाइन होगी, सेम रेडिकल एक्सिस। इन सब में क्या कॉमन होता है? इन एवरी ऑफ दिस टाइप एक तो S1 प्लस लैम्डा S2 अप्लीकेबल होता है कि नहीं बताओ? एनी सर्कल इन द फैमिली, कोई से भी 2 मेंबर हो, जैसे these 2 members are S1 S2, let's say these 2 members are S1 S2, let's say this and point circle are S1 S2. S1 and S2 are any 2 members in the family. तो any circle या फिर the equation of the family can be written in this form, S1 plus lambda S2. ये याद है? तुम लोगों ने वो सब करा है क्या, लिमिटिंग पॉइंट वगैरह? वो सब क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ाना है तो पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना है तो पढ़ा सकता हूँ। ऑर्थोगोनल फैमिली, कॉन्जुगेट फैमिली वगैरह, हाँ पॉइंट सर्कल, और वो भी होता है ना ऑर्थोगोनल फैमिली जो बनती है। इसमें आपने क्या बताया, नजदीक आएंगे तो डिस्टेंस कम होता है। इसमें बस ये है कि ऑब्वियसली ना, देखो नो टू सर्कल्स कट और टच ईच अदर ना, तो अगर सेंटर इज मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकल एक्सिस, रेडियस मस्ट रिड्यूस, अदरवाइज अगर रेडियस सेम है तो कट ही कर जाएंगे ना। अगर अलग अलग सेंटर है और रेडियस सेम है तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना। तो दिस इज अ फैमिली इन विच नो टू सर्कल्स कट और टच ईच अदर। तो इसलिए अगर सेंटर रेडिकल एक्सिस के पास आता जा रहा है तो रेडियस श्रिंक होते होते इसमें क्या हो जाता है, 0। दिस इज नॉट लाइक कोई सेंटर का सर्कल नहीं, सर्कल का सेंटर नहीं है, जैसा लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। तो वो बताना है तो बता सकता हूँ, आई डोंट माइंड, बट वो सिलेबस में नहीं है। तो बता दो। चलो ठीक है, बता देता हूँ। तो इसमें से कुछ लिखना है क्या? इसमें से कुछ लिखना है? चलो टेक 2 मिनट्स, अगर जिसको भी लिखना है तो लिख लो। इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, S प्लस लैम्डा एल। S प्लस लैम्डा एल ज़्यादा इजी पड़ता है ना। L क्या होगा यहाँ पे, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। S प्लस लैम्डा एल में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है ना। कोई सा एक सर्कल और रेडिकल एक्सिस भी चलेगा टू फाइंड आउट द होल फैमिली। और ये भी बात हुई ना, अगर कोई सा भी सर्कल और लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है तो पूरा फैमिली कैसा बनेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग। कोई सा भी सर्कल और लाइन टचिंग है तो पूरा फैमिली क्या बनेगा, टचिंग। और अगर एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्टिंग है तो पूरा फैमिली क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। अब देखो इसमें लिमिटिंग पॉइंट्स, बट मेरा सजेशन है कि हाँ सर इंसेंटर होने का एक्सप्लेन करो सर। क्या क्या बोल रहे हो सर, इंसेंटर वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो। इन सेंटर ये वाला, यस सर। देखो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ।
ये सब ठीक है, पता है तो, बट ये कोई इतना ज़्यादा काम आता नहीं है। नॉर्मल मेथड्स अगर या समझ रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो ट्राइंगल बनता है PAB, इस ट्राइंगल का इनसेंटर क्या होता है? जैसे मान लो डायमीटर बना दिया मैंने, तो दिस पॉइंट इज इन सेंटर एंड दिस पॉइंट इज एक्सेंटर। कैसे? ये कनेक्ट करो ऐसे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी आइसोसेलेस होगा। बट अगर ये एंगल और ये एंगल देखा जाए तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बेसिस पर ये दोनों इक्वल होते हैं ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गए। तो ए क्या हो गया? इन सेंटर। एंड सिमिलर कंस्ट्रक्शन करके यू कैन प्रूव दैट दिस विल बी एक्सेंटर, मतलब इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बीट करेंगे पी पे, ऐसा पॉइंट है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, देखो लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट आर लिमिटिंग पॉइंट्स? लिमिटिंग पॉइंट्स आर द पॉइंट सर्कल्स इन फैमिली, पॉइंट सर्कल्स इन फैमिली। तो ध्यान से देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप में दिख रहा है ना कि देयर विल बी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लिमिटिंग पॉइंट्स, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस वाले में भी दो हैं बट दे आर कोइंसिडेंट। इस वाले में ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द लिमिटिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही सर्कल हो सकता है, जीरो रेडियस वाला वो यही हो सकता है, तो दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट। एंड इन दिस केस जीरो सर्कल बन सकता है क्या? द सर्कल विथ लीस्ट रेडियस इज ये वाला सर्कल ना, डायमीटर वाला। इससे छोटा सर्कल बन सकता है क्या इस फैमिली में? तो इसमें अगर फोर्सिबली लिमिटिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो इसके लिमिटिंग पॉइंट्स क्या आएंगे? इमेजिनरी आएंगे दो, बट कोऑर्डिनेट इमेजिनरी आएंगे। लिमिटिंग पॉइंट निकालते कैसे? जैसे ये है s प्लस लैम्डा एल या फिर s1 प्लस लैम्डा s2। एटलीस्ट एक सर्कल, एक लाइन या फिर दो सर्कल तो देने ही पड़ेंगे फैमिली के लिए। तो इस इक्वेशन में पुट रेडियस 0, तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट? जैसे रेडियस निकालोगे g² प्लस f² माइनस c0 रखोगे तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं तो दो प्रॉपर सेंटर विल बी द लिमिटिंग पॉइंट। इस सर्कल का सेंटर, लैम्डा इज नॉट द लिमिटिंग पॉइंट कि दो रूट्स आ गए वो लिमिटिंग पॉइंट लिख के आ गए। इस सर्कल के जो सेंटर आएंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, या लैम्डा के जो दो रूट्स आएंगे उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो सेंटर में, माइनस g माइनस f, दैट विल गिव यू द लिमिटिंग पॉइंट। तो लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक है, रियल रूट्स आ रहे हैं तो ये वाला केस, इक्वल रूट्स आ रहे हैं ये वाला केस, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो ये वाला केस। तो इस वाले केस में इमेजिनरी लिमिटिंग पॉइंट बनते हैं, ठीक है? अब इसमें एक केस और होता है, दैट इज कॉन्जुगेट फैमिली। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप, ठीक है? नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप, ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो इसका कॉन्जुगेट या फिर ऑर्थोगोनल फैमिली भी बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट फैमिली। वो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, इनका रेडिकल एक्सिस एक ही लाइन है। यहाँ पे एक पॉइंट लो P। नाउ P is a point which is on the radical axis of this family. तो P has equal power with respect to all the circles or not? सारे सर्कल पे सेम पावर है। या फिर P पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो सारे सर्कल्स पे टेंजेंट लेंथ क्या होगी? सेम ना? ये समझा? तो व्हाट वी डू इज, जो अभी थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन करा था, फ्रॉम पॉइंट P if you draw a circle, sorry, not from point P, taking P as center and this tangent length as radius, circle बना सकता हूँ and that circle will be orthogonal to all the circles। वो अभी जो प्रीवियस अपन ने कंस्ट्रक्शन करा था, तो एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करा मैंने। तो इस केस में since this is, ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है, डिस्टेंस ही हो गया ना ये, तो इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल जाएगा कि नहीं बताओ? और ऐसे कितने सर्कल्स बना सकता हूँ? इनफाइनाइट, एंड ऑल सच सर्कल्स विल एक्चुअली पास थ्रू दीज टू लिमिटिंग पॉइंट्स और नॉट। तो ऐसे सर्कल्स बनाता क्या मान लो मैं ऐसे, आई कीप ऑन मेकिंग सच सर्कल्स ऐसे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या बन रहा है अपना? एक और एक फैमिली बन रहा है कि नहीं? ऐसा बताओ, ये सारे के सारे इन दोनों पॉइंट से पास होंगे, तो वी आर गेटिंग अ न्यू फैमिली ऑफ सर्कल्स ना।
तो इसमें क्या हुआ ध्यान से देखो, इसमें सिंपल सी चीज है, इसमें क्या याद रखना है बस, अगर लेट्स कॉल दिस F1, लेट्स कॉल दिस F2, अगर F1 नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप था तो उसका कॉन्जुगेट फैमिली कैसा बना है, इसको कॉन्जुगेट या फिर ऑर्थोगोनल फैमिली बोलते हैं, तो इसका F2 क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग टाइप एंड वाइस वर्सा। ये इसका कॉन्जुगेट है तो ये भी इसका कॉन्जुगेट है ना, तो मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर पहला वाला फैमिली इंटरसेक्टिंग होता तो उसका कॉन्जुगेट फैमिली क्या बनता, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये समझ गए। इसमें पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, ध्यान से देखो, F1 नॉन इंटरसेक्टिंग था तो उसके दो रियल लिमिटिंग पॉइंट थे, तो इसका जो कॉन्जुगेट फैमिली है F2 इज इंटरसेक्टिंग टाइप एंड passes through two fixed points. Which two fixed points? The limiting points of F1. दिख ही रहा है, F2 passes through two fixed points. इंटरसेक्टिंग टाइप है तो दो पॉइंट से पास हो ही होगा हर सर्कल, और वो दो पॉइंट क्या होते हैं, लिमिटिंग पॉइंट। इनफैक्ट कॉन्वर्स भी ट्रू है, F1 passes through two fixed points. अब this seems contradictory. F1 में हर मेंबर नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप है, बट आई एम स्टिल सेइंग कि F1 का एवरी सर्कल ऑफ F1 जो कि ये ब्लैक वाले सर्कल से नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप, एवरी सर्कल ऑफ दिस फैमिली पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, डायग्राम में तो दिख रहा है ना, कोई भी कुछ भी अलग अलग सर्कल है, क्यों है ये, हाँ, F1 passes through two fixed points which are limiting points of F2। मतलब अगर F1 F2 कॉन्जुगेट फैमिली है तो ये इसके लिमिटिंग पॉइंट से पास होगा और ये वाला उसके लिमिटिंग पॉइंट से होगा। आई शुड राइट दिस, मे इट बी रियल और इमेजिनरी। अब सिंपल सी बात बताओ यार, इमेजिनरी पॉइंट रियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है क्या, कर सकता है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि हाँ ये इमेजिनरी है बट सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पर लाई कर रहा है। अब उसको तुम डायग्राम में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये सर्कल पे कोई इमेजिनरी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो आई कैन से कि इट पासेस थ्रू दैट पॉइंट, बट इट इज इमेजिनरी। तो फंडा क्या है, F1 as well as F2. F2 passes through limiting points of F1 and F1 also passes through two fixed points in the plane. Those two fixed points are imaginary, so you cannot plot them. ठीक है, ये याद रख सकते हो। और अगर तुम्हें मान लो कोई ये बोलता है, अगर एक Sir, हाँ, can you explain this? Can you explain it again, please? A little confused. देखो, अगर मान लो ये F1 जो ब्लैक वाला फैमिली है, ये पहला पॉइंट तो समझ आया होगा, दिख रहा है F2 passes through two fixed points which are the limiting points of F1। अब मैं बोल रहा हूँ कि F2 के लिमिटिंग पॉइंट्स अगर निकालते हो तो दे विल बी इमेजिनरी, क्योंकि F2 इज इंटरसेक्टिंग टाइप, बट वो इमेजिनरी पॉइंट्स हर मेंबर ऑफ F1 सेटिस्फाई करेंगे। आई एम सेइंग कि कॉन्जुगेट में क्या होता है कि दो जो कॉन्जुगेट फैमिली है, ये इसके लिमिटिंग पॉइंट से और ये इसके लिमिटिंग पॉइंट से पास होता है, बट इस वाले सिनेरियो में F2 के लिमिटिंग पॉइंट्स क्या इमेजिनरी है, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सी कि F1 का हर मेंबर किस दो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। दे आर इमेजिनरी, यू कैन नॉट प्लॉट देम, सो यू कैन नॉट सी देम, जस्टिफाई नहीं कर सकते ऐसे, बट इमेजिनरी है बट सेटिस्फाई करेंगे F1 की हर इक्वेशन को। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और जैसे एक और चीज पूछ सकते हैं, कभी पूछा तो, ये मान लो एक फैमिली है, तो इसका ऑर्थोगोनल फैमिली कैसे निकालोगे, द कॉन्जुगेट फैमिली कैसे निकालोगे, बात समझे ना मेरी। अगर ये एक फैमिली है, कैसा भी हो, इंटरसेक्टिंग हो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, इस फैमिली का एक फिक्स्ड कॉन्जुगेट फैमिली होगा, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा आइडिया है। अगर मान लो कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है उसके हर सर्कल्स क्या होने चाहिए, इसके हर सर्कल को ऑर्थोगोनल, तो लेट दैट फैमिली बी x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये चलेगा, सबको जल्दी बताओ। नाउ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो क्या लगा सकता हूं मैं, 2g1 g2 + f1 f2 is c1 + c2 or not, बोलो। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कोई सी भी वैल्यू के लिए ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए ना, मतलब हर सर्कल को ऑर्थोगोनल होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, 2g1 g2, जैसे ये वाला हो गया, तो इसका g तो g है और इसका g क्या है, नहीं लैम्डा बाई 2,
प्लस एफ लैम्डा बाई 2 इज C1 प्लस C2 क्या बन रहा है? C प्लस -4 माइनस लैम्डा। ये समझा? दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इससे क्या बन रहा है ध्यान से देखो, लैम्डा टाइम्स G प्लस F प्लस 1 इज C माइनस 4। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। यानी ये लैम्डा में आइडेंटिटी है। ये बात सबको समझी? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो यानी लैम्डा में आइडेंटिटी है। C की वैल्यू क्या मिल गई 4, F की वैल्यू क्या मिल गई -G माइनस 1। तो ये सर्कल ध्यान से देखो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, F को ये पुट कर दो -2g बाय -2y प्लस 4। अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है कि -4 है कि सही लिखा नहीं? हाँ नहीं, प्लस g टाइम्स क्या बन जाएगा, नहीं -2y मिस करा ना, वही तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर -2y प्लस 4 और एक g वाला कॉमन निकाल लो। तो g कॉमन निकालोगे तो क्या बच रहा है, हमने कुछ गड़बड़ लिखी है, माइनस ये y एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी वही तो सोचो, ठीक है। और क्या बन जाएगा 2g x माइनस y, तो ये s प्लस लैम्डा एल फॉर्म में आ गया ना। तो ये हुई तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट। नहीं तो लिमिटिंग पॉइंट निकाल के भी कर सकते हो, समझा इतना? तो इसमें से कुछ लिखना है कि बस अंडरस्टूड है? लिखना है तो लिख लो, अपने क्वेश्चंस देता हूँ थोड़े, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो वही करते हैं। हाँ dy बाई dx डिफरेंशिएट करके, हाँ चले वो बोल रहे हो क्या, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, हाँ चलेगा, हाँ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है ना, बट उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। मतलब ठीक है, कैलकुलेशन उतना ही होगा, इनफैक्ट दिस इज इजियर, क्योंकि पहले लैम्डा एलिमिनेट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है करेक्ट है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ही है। बट ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा खाली फैमिली ऑफ सर्कल्स इज इन द सिलेबस, इतना हाई फाई लिमिटिंग पॉइंट वगैरह इज नॉट इन अ सिलेबस। थोड़ा सा बोर्ड तो पढ़ा दिया मैंने, इसमें कोई नहीं पूछता, दे मैक्सिमम गो अप टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल से ज्यादा कोई नहीं पूछता। हाँ सर S1 प्लस लैम्डा S2 कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करता है? अरे भाई सिंपल सा जो फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट था, देखो मतलब S1 जैसे ये दो सर्कल हैं और ये रेडिकल एक्सिस है, तो एनी सर्कल इन दिस फैमिली इज गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा S2। देखो ये S1 है, ये S2 है, ठीक है? तो चलो ये वाला ले लेता हूँ, इस वाले से प्रोबेबली ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे ये वाले से, ठीक है? ये S1 ये S2। What I'm saying is any circle passing through intersection point of these two is given by S1 plus lambda S2। तो देखो ना S1 plus lambda S2 पहली बार ये सर्कल ही होगा ना, क्योंकि इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विल बी इक्वल एंड स्टिल देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ x y, तो ये है एक सर्कल ही है S1 plus lambda S2। Now look at this point, the intersection point. Does A satisfy this equation? Yes, क्योंकि A S1 को भी जीरो कर रहा है, A is on S1 ना, A is on S2, A को इस पर रखूंगा तो S1 और S2 irrespective of any value of lambda will be zero ना, तो A satisfies this, B intersection point also satisfies this, so this is a circle and it also passes through A and B। तो वही बात होगी ना कि it's a family of circle, मतलब any circle passing through these 2 points is given by this, which is also family of coaxial circles। सर ये नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे सोचो ना यार, एक काम करो, ये डायग्राम रब कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दे हैव टू बी इंटरसेक्टिंग।
चलो ऐसा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक x² + y² - 4 है, ठीक है, और एक ऐसी रैंडमली लाइन ले लेता हूँ x + y + 4, ठीक है। अगर मैं s + l करता हूँ तो एक सर्कल मिलेगा। अच्छा एक सेकेंड, ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये ध्यान से देखो, ये सर्कल और ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन ले लो, दीज टू आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब ऐसे सोचो s + l भी एक सर्कल ही होगा कि नहीं बताओ, s + l एक भी सर्कल होगा, दिस इज अ सर्कल, ये बात समझ रहे हो, ये सर्कल और ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, ऐसे हैं। अब s + l कैसा सर्कल होगा, ये वाला जो इक्वेशन बनेगा x² + y² + x + y + 4, ये कैसा सर्कल होगा, सिंपल सी बात है ना। अगर दिस माइनस दिस करते हैं तो ये रेडिकल एक्सिस मिल रहा है, बट सिंस दीज टू आर नॉन इंटरसेक्टिंग तो ये जो सर्कल बना ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग बनेगा ना। ऐसे ही s + 2l एक सर्कल बनाओ, s + 2l एक नई इक्वेशन बनेगी, बट s + 2l और s का रेडिकल एक्सिस अभी भी l ही होगा, तो वो भी नॉन इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। तो हम सेइंग कि s + λl करोगे तो अगर ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है तो तीसरा जो सर्कल मिलेगा s + λl वो भी नॉन इंटरसेक्टिंग ही मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल सर्कल एंड लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, तो दिस सर्कल एंड दैट सर्कल आर आल्सो नॉन इंटरसेक्टिंग। चलो रब कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो कुछ डिसेंट अच्छे सब देता हूँ तो ट्राई करो, बहुत इजी नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना, मतलब इजी तो तुमने कर ही रखी इसमें, कुछ वैरायटी ऑफ सम्स दे देता हूँ। रेडियस फिक्स है, ठीक है, a,0 a सेम पॉइंट जो रेडियस a दे रखा है ना वही वाला। तो जो भी तरीके से कर पा रहे हो करो, बट टेक 5 मिनट्स फॉर वन सम, मतलब टाइम ज्यादा नहीं है।
ये जो दो सर्कल दिए हुए हैं ए मतलब नहीं सेम है सेम है। जैसे ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये पॉइंट से एक सीकेंड बनाया और वो सीकेंड वेरिएबल है ऑफ कोर्स। हां एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया ना, वो वाई एक्सिस में मूव करेगा तो ए पॉइंट थोड़ी ना हमेशा लाइन करेगा हैं सॉरी नेम गलत दे दिया, दोनों का सेम दे दिया, सॉरी आई डिड नोटिस कि ये ए है और लेट्स कॉल दीस 2 पॉइंट्स सी एंड डी। ऑफ कोर्स माय मिस्टेक, इस पॉइंट का लोकस जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। हाँ आंसर आ गया, मतलब हाँ ठीक है, हाँ ओके इसमें वेरिएबल बचेगा, एक बार देखो आगे करके देखो टी में क्वालिटी बन रहा है, टी मतलब एक ऐसा बच जाएगा, टी में कुछ रह जाएगा। और ये मान लो इधर इंटरसेक्ट करने की कोशिश की तो तुमने इसको सेंटर बट ये क्या है, व्हाट इज दिस? चलो ठीक है, तो तुमने फिर सेंटर वेरिएबल मान ली, सेंटर इज 0, ठीक है चलो यस ओके। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक काम करो, मैं समझ रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालोगे और उसमें a, 0 पुट करोगे, t बचेगा, नहीं है t का प्रोबेबली क्वांटिटी बचेगा, एक बार करके पक्का बोल रहा हूँ। और फिर t एलिमिनेट कैसे करोगे उसमें से, वही तो क्वेश्चन है, एलिमिनेट कैसे करोगे? चलो लीनियर भी बनता है, तो t इक्वल टू समथिंग, that does not give us the locus ना, तो t रह गया ना, वेरिएबल एलिमिनेट कर देना, t रह गया ना, मुझे t नहीं चाहिए लोकस में, वेरिएबल नहीं चाहिए रहता ना, एक्सटर्नल वेरिएबल जितना चाहिए, समझ रहे हैं? t एलिमिनेट करना है, t पिक्चर से दो चीजें वेरिएबल है, तो सेंटर वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल करेक्ट है, दो वेरिएबल करेक्ट है, आपको एलिमिनेट नहीं बचेगा एक ही वेरिएबल विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको एलिमिनेट कैसे करोगे, वही तो कैच है क्वेश्चन में, अदरवाइज इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वो एलिमिनेट होगा बट तो तुम्हें सोचना है कैसे होगा। सर ये वो होगा ना लाइन होगा, लाइन जनरली थोड़ा सा अनकॉमन सा वो आएगा लोकस।
सर नीचे का दिख रहा नहीं है। कैमरा वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा नहीं, यहाँ से हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है। नहीं 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 यार, मत कर ऐसा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो लाइन को ज़ीरो S plus lambda PSL का बट ये सर्कल वेरिएबल माइनस KT तो भी तो S plus lambda स्क्वायर करके भी करेगा, तो वो वेरिएबल कैसे ये करेक्ट है। अब टू T एलिमेंट सोच के बता, मैं ऐसे हिंट देता हूँ कि व्हाट कैन बी सेड इवेंचुअली अबाउट T। ये सोच, अभी इसमें से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा ना, वही तो कैच है। अब एलिमिनेट कैसे करें? क्वेश्चन में वही कैच है। हाँ ऑफ कोर्स, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच है। सिंपल सा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज दैट सीक्वेंस कैच कॉम्प्लिकेटेड दिख ही रहा है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें S plus lambda स्क्वायर कितने किसने देखा है? S plus lambda स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हो? ये कोई काम का नहीं है। तुम और कंफ्यूज हो गए इस चीज से। बड़े बड़े वर्ड यूज मत कर। लोकस आएगा जो भी आएगा, बट इनइक्वालिटी आएगा, इक्वालिटी नहीं आएगा। सर रीजन आएगा, लोकस विल नॉट बी कर। हाँ बोलो सर, फर्स्ट वाले में जो आंसर है वो उसमें वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो उसके लिए कुछ वो एलिमिनेट होगा क्या? क्वेश्चन में कैच वही है कि तुम कुछ भी करोगे सेंटर का y कोऑर्डिनेट फंसा रह जाएगा, यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट। तो अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि वो जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट दैट। उसको सोचोगे ना, एक ही तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि लोकस विल बी एन इनइक्वालिटी, रीजन आएगा क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें। लोकस विल बी ए रीजन। अब वो सोचो वो रीजन कैसे निकालोगे, हाउ विल यू एलिमिनेट दैट वेरिएबल? हाँ ग्रेटर लेस देन t के लिए हमेशा रूट्स चाहिए ये नहीं अच्छा टी चाहिए सर ऐसा भी आ सकता है। A square better than 4a minus 4a 4 times x minus हाँ लोकस यार इनइक्वालिटी रीजन है क्योंकि इसमें वेरिएबल है ना। So for the second one, so can you apply the condition that distance between the two centers is less than the radius का, दोनों radius के sum का square है, वो less करके वो हो जाता है, वही है ना मतलब? Distance between the centers is even lesser than the difference of radii. हाँ वही हाँ बट उसको करके आई थिंक आना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बस ये बोल रहा हूँ। G dash greater than 0 आ रहा है, पर C कट जा रहा है, तो C का कंडीशन नहीं आ रहा है। तो फिर C का भी सोचो। हाँ वही C का भी सोचो, करेक्ट है वैसे, उसको स्क्वायर कर करके आ सकता है। अब उसको यहाँ सोचो।
CC. सर आंसर बोलना है, आंसर बताना है क्या, मतलब अनाउंस करना है क्या? बता दो चलेगा, फर्स्ट वाले का। हाँ सर फर्स्ट वाले का बोलो। सर फर्स्ट वाले का आ रहा है y स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टाइम्स ax माइनस a स्क्वायर। वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड। पहला बता देता हूँ, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो फर्स्ट सम में एक्चुअली फाइट हो जाती है क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं हो पाते। जैसे ये a, 0 है एंड दीज टू इंटरसेक्टेड ph, k। तो सर्कल का सेंटर 0, c ले लेता हूँ, रेडियस a देके रखा हुआ है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस y माइनस सी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0। अब ध्यान से देखो ph, k का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में सोचो। इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहने से पासेस थ्रू a, 0। तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा, t इक्वल टू 0 ना। तो h, k का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा hx प्लस ky माइनस c टाइम्स y प्लस k plus c square minus a square equal to 0, and this chord of contact actually passes through a, 0। तो a, 0 रख लो, ah minus ck plus c square minus a square is 0। अपन ने सारी कंडीशंस यूज कर ली and we are still left with c। अब देखो c के बारे में eventually क्या बोल सकते हैं कि कुछ भी कर लो, c is on the y axis, तो c रियल होना चाहिए ना। C can be anywhere on the y-axis। तो C पे कंडीशन यही लगा सकता हूँ कि C has to be real। तो मतलब C रियल होने के लिए D should be greater than equal to 0। तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 AC greater than equal to 0। तो ये लोकस कर रहे हैं, समझे? क्वाड्रेटिक का यूज करके एलिमिनेट कर लिया। अब तो पाथ कैन बी ए रीजन आल्सो ना, वो वाली बात है। इस रीजन वाले पॉइंट्स होंगे ऐसा। तो ये रिकनेक्ट कर उन्हें दिक्कत आ रही है। किस चीज का डिफरेंशियल ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो उसको हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं तो वो जो c है, तो c हम लोग को पता है वेरिएबल है। तो फर्स्ट तो डिफरेंशियल लगा क्यों है, वो भी इस बात को नहीं, बिकॉज इट्स
अरे मतलब फाइनली आ रहा है ना पूरा, मतलब एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल आ रहा है तुम्हारा भी, जो वेरिएबल है उधर c है। हाँ इसीलिए तो उससे h और k में इक्वेशन कैसे आएगी? ये वो तो h और k तो ये बोलना चाह रहे कि x और y कर लेगा ना बाद में। हाँ हाँ तो फिर बट तेरा लोकस नहीं आएगा, तो उससे खाली ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि इट्स अ फैमिली। हाँ लोकस निकालने की कंडीशन लगानी। लोकस मतलब तो बस c उड़ाना है ना, वही मतलब, और वो डिफरेंशियल में नहीं कि dy by dx करके c निकाल दिया, मतलब प्रॉपर इक्वेशन इन x एंड y। So we're not able to see properly. You have the option of zooming in available. No, there's some problem with the resolution. अच्छा ओके, तो कौन से सेंटर से बोल रहे हैं आप? पुणे FC. अच्छा ठीक है, तो we'll fix it from here. Wait. Okay. सर वो बोर्ड के बॉटम राइट कॉर्नर में क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा है, एकदम एक्सट्रीम राइट। Read it out for you. PQRS are concyclic with center, मतलब PQRS are concyclic, ये given है। If PQRS are concyclic, हाँ ठीक है, and center of that circle is alpha comma beta, then find value of, एक काम करो, find value of alpha plus beta ही बोल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। अगर वो सर्कल जो PQRS से पास हो रहा है उसका सेंटर अल्फा बीटा, तो फाइंड अल्फा प्लस बीटा। वापस एक बार हो गया। सेकंड वाला ये नॉर्मल है। सो ऐसे कर सकते क्या, उन दो को सबट्रैक्ट करके रेडिकल। वेरी गुड, सही। उससे भी आएगा, उसको भी स्क्वायर कर करके कर सकते हैं, एक ही रूम में करना है। और थोड़ा हाँ और अच्छे से भी सोच सकते हैं इसी चीज़ को। उससे दोनों आ रहे हैं, जी डैश भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव, कंडीशन ऐसी बन रही है। ठीक है, फिर ठीक है। तो जी डैश पॉजिटिव होता है, क्यों? जी डैश माइनस नेगेटिव, हाँ तो सी अगर नेगेटिव होता है, अच्छा फिर ठीक है।
हाँ वही आएगा वापस। चलो सेकंड बताऊं, सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाला देखो, काफी तरीके से कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज लेस देन डिफरेंस ऑफ रेडियाई। बट ऐसे सोचो, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा अच्छा रखना है। मान लो ये -g,0 है, ये -g',0 है, तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस देखो कितना अच्छा आ रहा है। सबट्रैक्ट दीस टू, तो रेडिकल एक्सिस x = 0 ही बन रहा है ना। Now if one circle is completely inside the other circle, the radical axis must not intersect any of the two circles. मतलब x = 0 को अगर इस सर्कल से फोर्सिबली सॉल्व करता हूँ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आने चाहिए? इमेजिनरी ना, क्योंकि रेडिकल एक्सिस इस सर्कल पे सॉल्व कर रहा हूँ तो रूट्स नहीं आने चाहिए, इमेजिनरी आने चाहिए। तो c पॉजिटिव हो गया कि नहीं बताओ? c पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकंड, अगर ये सर्कल कंप्लीटली इनसाइड दिस, तो इसका सेंटर इसमें नेगेटिव पावर देगा फॉर श्योर। इससे तो क्या हुआ? इससे हुआ कि या तो दोनों सर्कल दूर दूर हैं या फिर वन इनसाइड द अदर। अब वन इनसाइड द अदर के लिए क्या कर सकता हूँ? ये वाला जो सेंटर है -g',0, इस सर्कल पे नेगेटिव पावर देना चाहिए, तो रख दो। तो g² - 2gg' + c मस्ट बी 0, सॉरी मस्ट बी नेगेटिव। तो gg' क्या आ गया? ग्रेटर देन g² + c/2 ना, तो g² + c पॉजिटिव है तो gg' भी पॉजिटिव होगी। सिंपल। सर इसमें एक और अगर चीज करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं क्या कि y को 0 डाला तो बड़े वाले सर्कल का जो सब छोटा वाला x में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उसका जो छोटा वाला रूट है वो नीचे वाले के छोटे वाले रूट से छोटा होगा, और ऊपर वाले का जो बड़ा वाला रूट है वो नीचे वाले के बड़े रूट से भी बड़ा होगा। तो ऐसे कुछ किया तो रुक जाओ, सोचने दो, एनालाइज करने दो। y को 0 रखा, तो y को 0 रखा मतलब x में क्वाड्रेटिक बनेगी, ये वाला का बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझा। सर्कल को x एक्सिस से सॉल्व कर रहे हो, फिर उसके बाद इस सर्कल के दो रूट्स मान लिए x1 x2 और इस सर्कल के दो रूट्स मान लिए x3 x4, एंड देन यू आर यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट्स कि इस सर्कल के रूट्स लाई बिटवीन द, मतलब x3 x4 लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। हाँ सर, यही आ रहा है उससे gg' and c पॉजिटिव नहीं वो यहाँ वैसे एक छोटा सा कैलकुलेशन पढ़ रहा, वैसे नहीं, देखो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, मतलब आना चाहिए, बट तुमने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ करी होगी कि इस क्वाड्रेटिक में f(x3) एंड f(x4) नेगेटिव रख दो, f(x3) और f(x4) नेगेटिव रख दो ये x1 x2 वाली क्वाड्रेटिक में, दैट शुड गिव यू द आंसर, आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आना चाहिए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ करी होगी। अच्छा अप्रोच है। बट वही है, x3 x4 निकालने पड़ेंगे यार उसके लिए। इनवर्स will be to you, but थोड़ा सा फाइटर होता है ना, tan inverse is not always tan inverse x plus y। ठीक है, कौन सा इमेजिनरी के लिए आता है इनवर्स थ्योरम, इमेजिनरी के लिए आता है इनवर्स थ्योरम, वही बोलो ना, मतलब वो ये पॉइंट जरूर देखना नहीं यार, हमेशा तो नहीं, मुझे भी नहीं आता इमेजिनरी के लिए इन्वेस्ट क्यों कराएं। तो एक काम करना तेरा डायरेक्शन सही है और ऑलमोस्ट सही है, बट इन्वर्स में मत कर, वो कि इन्वर्स में, हाँ तो इसी साइड करना, इन्वर्स मत लेके टेन नहीं करना, x निकालेगा वो, मतलब x और y आएगा उसको, हाँ एंड फिर उसको माइनस, ठीक है, इससे तो कुछ नहीं आएगा,
इससे कुछ नहीं आएगा। तू वो सही कर रहा है ना, तूने v हटा दिया ना, v आयोटा और माइनस v आयोटा वैसे ही करना है, बट tan ही रख के रखना। आ जाएगी। थोड़ा सोच आ जाएगा। तो भी tan इक्वल्स टू u माइनस v आएगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आयोटा की जगह माइनस आएगा। बस अब इसको यूज कर सोच, इसमें से v उड़ा। मैं तू एक्चुअली बोल रहा था ये तो अप्लाई कर रहा है यार, ये देख, ये अप्लाई कर रहा है ना, वो मैं वही बोल रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं कर सकता। ये तो रियल के लिए भी लिमिटेड नहीं होता, कांस्टेंट में जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ ये अपन ने लाइक इमेजिनरी में डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे? इमेजिनरी है ना, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अपन को पता है करेक्ट, ट्रिगो वाला तो करेक्ट होगा ना, ट्रिगो में ही करना है, इनवर्स में मत करना। उसका आ गया तो देखना, जैसे तू इधर एलिमिनेट करता है तो ट्रिगो में एलिमिनेट हाँ ये देखना। एक्सप्रेस लैम्डा इफेक्ट उसका रहेगा, इनवर्स क्वाड्रेटिक ये सर्कल बन गया ना, ये सर्कल बन गया ना, इसको लग जाएगा। अगर मतलब अगर u कांस्टेंट है बट अगर u वेरी करता हूँ तो देने लगे। अच्छा वो u कांस्टेंट है, कर्व u कांस्टेंट मतलब एक कर्व भी लैम्डा हो सकता है, पैरामीटर आ रहा है ना वो एक तरीके से। अगर मैं u वेरी करूँगा तो फैमिली ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि if u is constant मतलब कांस्टेंट ऐसे। अच्छा एक सेकेंड, u is मैं बोल रहा हूँ u फंक्शन ऑफ x not function of x, not use independent parameter, independent parameter x और y पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो लैम्डा s प्लस लैम्डा टाइप हो गया ना। So first part so वो वाला प्रूव हो गया। So first part let me think on this, u equal to constant वाला प्रूव हो गया, v equal to constant। तो जैसे वो क्या था उसमें एक बार u एलिमिनेट कर, तो u एलिमिनेट करने के लिए क्या लगेगा? q प्लस b आया था माइनस q माइनस b आया था, देन ऑफ a माइनस b लेना है साथ में करके लेते हैं। करके आओ ना ये क्वेश्चन। चलो अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चंस घर से ट्राई करके आना एंड नेक्स्ट लेक्चर मेक श्योर वी डिस्कस दिस। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन दे नहीं पाता, तो एक काम करो करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू पैराबोला। तो पैराबोला का थोड़ा सा थ्योरी और कुछ टाइम मिलता है, आधा एक घंटा, तो अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये करके आओ, अच्छे क्वेश्चन। फोर्थ तो इजी है, यू कैन डू दैट। चलो बाय।